أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری سسٹر، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ہمارا نیکسٹ لیسن جس کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا حضرت فاطمہ زہرا. تو دیکھیں پہلے تو یہ کون ہے حضرت فاطمہ زہرا؟ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے نا، ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. آج ہم ان سے کردار سے متعلق تھوڑی سی اس سبق کے ذریعے معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں سبھی نے دھیان سے سبق کو سننا ہے، سمجھنا ہے. دیکھیں آپ کی آدھی پڑھائی، آدھی اسٹڈی، یہ جو آپ دھیان دے کر یہاں پر سنتی ہے نا سبق، اسی میں آپ کی آدھی پڑھائی ہو جاتی ہے، آدھی اسٹڈی ہو جاتی ہے. اور ایک آدھ کوشچن جو رہ جاتا ہے پھر آپ وہ تھوڑا سا دیکھ کر سکتے ہیں. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں سبق کا عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا. تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. تو حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا، یہ 4 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. تو یہ فاطمہ زہرا یہ جو ہے یہ کون سی سب سے چھوٹی بیٹی ہے ہمارے نبی کی. پیارے نبی اپنے سبھی بیٹیوں کو بہت چاہتے تھے، ہے نا. بیٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا. اور دیکھو ماں سے زیادہ ایک باپ کا بہت لگا ہوتا ہے بیٹی سے، ہے نا. اور چھوٹی بیٹی سے تو پوچھو ہی مت. تو اسی طریقے سے جو حضرت فاطمہ زہرا تھے یہ ہمارے حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور ان سے ہمارے نبی کو کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا. پیارے نبی اپنی سبھی بیٹیوں کو بہت چاہتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے پیارے نبی کو ان سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا، ہے نا. گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے، اگر چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا بہت لاڈ پیار ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات، ہے نا. اس طریقے سے ہم ماں باپ کیا کرتے ہیں، چھوٹے بچے سے زیادہ لگا ہوتا ہے. اور ویسے تو سبھی بچے ماں باپ کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر چھوٹے بچے سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے، اس کو زیادہ لاڈ پیار ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ کو بھی پیارے نبی سے بہت محبت تھی. اور جو حضرت فاطمہ تھے انہیں بھی کیا تھی؟ ہمارے نبی سے بہت محبت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتے تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتے، پھر گھر کے اندر داخل ہوتے. ننھی فاطمہ اپنے پیارے ابو کی آواز سنتے تو دوڑ کر دروازے پر پہنچ جاتے، ہے نا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، باہر سے کہیں تشریف گھر لاتے تھے تو السلام علیکم کہتے. تو جب اپنے ابو کی آواز سنتے فاطمہ تو وہ کیا کرتے؟ دوڑ کر دروازے پر پہنچ جاتے اور آپ کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لاتے. اور آپ کی پھر کیا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ زہرا کیا کرتے تھے؟ اپنے ابو کی، ہے نا. دیکھیے ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب ابو آتے تو سب چھوٹے بچے پہلے دوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں. تو انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لاتے اپنے ابو کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھا لیتے اور بڑی محبت سے ان کی پیشانی کو چوم لیتے. تو یہ حضور کا معمول تھا، ہے نا. جب بھی آتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ان کے سلام کا آواز سن کر حضرت فاطمہ کیا دوڑی چلے جاتے اور اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر انہیں گھر میں لے آتے. اور گھر میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہیں گودی میں اٹھا کر لیتے اور ان کی پیشانی کو چوم لیتے تھے. پیارے نبی کے ایک چچیرے بھائی
हाँ, प्यारे नबी के एक चचेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत फ़ातिमा की शादी हुई थी। और वो हज़रत फ़ातिमा से वो भी क्या करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे और इनका बड़ा ख़्याल रखते थे। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि हज़रत फ़ातिमा की शादी किससे हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई यानी कि हज़रत अली से हुई। वो हज़रत फ़ातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे और इनका बड़ा ख़्याल रखते थे। हज़रत फ़ातिमा भी अपने शौहर हज़रत फ़ातिमा भी अपने शौहर का बहुत एहतराम करती थी। देखिए यहाँ पर थी नून गुन्ना में लिया गया है तो एज़ अ रिस्पेक्ट। तो हज़रत फ़ातिमा का भी यहाँ पर किरदार बताया गया है कि जब हज़रत अली भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे, तो हज़रत फ़ातिमा भी क्या करते थे अपने शौहर का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। इनकी पसंद का ख़्याल रखती थी और दिलो-जान से इनकी खिदमत में लगी रहती थी। है ना? अल्लाह ने कहा है कि अगर सजदा अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदे का हुक्म होता तो वो शोहरों को होता, है ना? तो इसलिए हज़रत फ़ातिमा क्या करती थी अपने शोहर की पसंद का बहुत ख़्याल रखती थी और दिल-ओ-जान की इनकी खिदमत में लगी रहती थी। यहाँ पर हमें देखिए इस सबक के ज़रिए शोहर और बीवी के रिश्ते रिश्ते को भी उजागर किया गया है, उसके बारे में भी मालूमात दी गई है। और बाप और बेटी के रिश्ते को भी है ना किस तरीके से अपनी बेटियों को ट्रीट करना है, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना है, किस तरीके से है ना इस्लाम में देखिए इस्लाम मज़हब जब इस्लाम दुनिया में आने से पहले है ना अरब में कैसा था जहालत का दौर था। वहाँ पे बेटियों को ज़िंदा दफ़न किया जाता था। औरत यानी क्या गुलाम समझा जाता था, उसको लोंडी, नौकर बनाकर रखा जाता था, उसको अहमियत नहीं दी जाती थी। मगर जैसे हमारे नबी दुनिया में आए, ये सब जहालत का अपने नूर से क्या कर दिया, जहालत को ख़त्म कर दिया। और इस्लाम ही एक वाहिद ऐसा मज़हब है कि जिसमें औरतों को इतनी इज़्ज़त और इतना अज़ीम मुक़ाम दिया गया है ना। चाहे वो बेटी के ज़रिए हो या माँ के ज़रिए हो या बहन के ज़रिए हो, है ना? हर दर्जे में, हर लक़ब में, हर ओहदे पर है ना औरत को इज़्ज़त का मक़ाम इस्लाम देता है। तो यहाँ हमें इस सबक के ज़रिए देखिए हर पहलू को दिखाया गया है, बाप और बेटी का रिश्ता दिखाया गया है, शौहर और बीवी का, है ना? इस तरीके से हमें सबक से फ़ायदा उठाना है और अच्छे-अच्छे जो सुन्नतें वो है हमारे रोज़ाना के मामूल में लानी है। शादी के बाद भी आगे देखते हैं देखिए शादी के बाद शादी के बाद भी जब कभी फ़ातिमा प्यारे नबी की खिदमत में जाते, आप खड़े हो जाते। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी का एहतराम यहाँ पर बताया गया है कि शादी के बाद भी जब फ़ातिमा अपने अब्बू से मिलने जाते, तो ताज़ीमन है ना ताज़ीम के तौर पर अपनी बेटी की है ना ताज़ीम के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, खड़े हो जाते। बड़े प्यार से उनकी पेशानी चूमते और उन्हें अपने पास बिठा लेते। सुभान अल्लाह! देखिए हमारे हुज़ूर ने कितनी है ना एज़ अ बेटी भी कितनी रिस्पेक्ट हमारे दुनिया को दिखाई है कि बेटियों की इस तरह इज़्ज़त करो, एहतराम करो, है ना? जब इस्लाम नहीं था ना तब के हालात अगर आप सोचेंगे ना आपकी आँखों में आँसू आ जाएगा, ऐसे हालात थे लड़कियों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में फ़ातिमा से मिलकर रवाना होते और जब सफ़र से वापस होते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलते और फिर अपने घर तशरीफ़ ले जाते। ये इनका मामूल बताया गया है। जब भी किसी भी सफ़र पर जाना होता ना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि पहले सबसे आखिर में सफ़र में जाते सबसे मुलाकात लेते, सबसे बातें करते, है ना? सबकी खैरियत दरियाफ़्त कर कर आखिर में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलते और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले अपने बेटी के पास जाते थे और उनसे मुलाकात करते थे। और फिर वो होने के बाद फिर क्या करते थे, वो अपने घर चले जाते थे। घर तशरीफ ले जाते थे। इससे मालूम होता है कि बीबी फ़ातिमा का रुतबा कितना बुलंद था, है ना? देखिए हुज़ूर जो 2 जहान के है ना 2 जहान के बादशाह हैं, उनका ये मामूल था। तो ये देखिए तमाम बेटियों में भी अगर हम बोले तमाम उम्मत मुसलमा में बोले, है ना? तो कितना अज़ीम मक़ाम है कि नबियों के सरदार, है ना? नबियों के सरदार जिसे कहते हैं वो अपना जो सफ़र शुरू करते थे तो उनसे मिलने के बाद और सफ़र ख़त्म करते थे तो पहले फ़ातिमा ज़ोहरा से मुलाकात करते थे। उनकी खैरियत दरियाफ़्त करते थे सबसे पहले आकर। तो इसलिए कहा गया है कि बीबी फ़ातिमा का रुतबा कितना बुलंद था और प्यारे नबी को उनसे कितनी मोहब्बत थी, है ना? देखिए एक बाप होता है तो उसकी सभी औलाद बराबर होती है, मगर जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो माँ-बाप की ज़रा लाडले
ज्यादा होते हैं। ठीक उसी बताया गया है कि बीबी फातिमा दिल व जान से अपने अब्बू का कहना मानती और कोई भी ऐसा काम न करते जिससे अल्लाह और उनके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते। देखिए अभी यहाँ पर किस पहलू को उजागर किया गया है कि एज मतलब एज अ हम बेटी या बेटा है ना, अपने माँ बाप के बच्चे होने के बाद हमें किस तरीके से करना है। कि जो फातिमा तो जोहरा है थे वो क्या करते थे, अपने माँ बाप के फर्माबरदार थे। अब्बू के क्या करते थे, वो फर्माबरदारी करते थे, उनकी बात को सराखों पर रखते थे और उनका कहना मानते थे। तो यहाँ पर क्या कौन सा कैरेक्टर उजागर किया गया है कि एज अ डॉटर है ना, एज अ डॉटर किस तरीके से एक लड़की को अपना फराइज अंजाम देना चाहिए। तो ये देखिए ऐसे असबाब के जरिए हमें हर पहलू पर रोशनी डाली जाती है और हमें ये मैसेज दिया जाता है, हमें ये समझाया जाता है, हमें पैगाम दिया जाता है कि तुम किस तरीके से दुनिया में रहना है, किस तरीके से रिश्ते निभाना है। इस तरीके से उसके प्यारे रसूल नाराज जिससे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल नाराज हो। मतलब ऐसा कोई वो काम नहीं करती थी कि जिससे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल नाराज हो। हजरत फातिमा घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती थी। ये जो हजरत फातिमा थे, ये क्या करते थे, अपना सारा काम काज अपने हाथों से करते थे। देखिए है ना, नबियों के सरदार है ना, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है ना, और पूरे काम काज क्या करते थे, वो अपने हाथों से करते थे। ऐसे नहीं कि मुलाजमा से कराते थे, लौंडियों से कराते थे, है ना। उस वक्त भी थे मेड्स थे, जैसे कि लौंडिया कहा जाता था, मगर ये जिस तरीके से उन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की थी है ना, तो वो खुद अपने घर का सारा काम अपने हाथों से करती थी। हज़रत फ़ातिमा घर का सारा काम-काज अपने हाथों से करती थी। मश्क जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कौन-कौन से काम मश्क में पानी भर कर लाती, मश्क में पानी भर कर लाती थी, गल्ला साफ करती थी, आटा पीसती, खाना पकाती, झाड़ू देती, कपड़े धोते और घर के दूसरे कामों में लगे रहते। देखिए, है ना? यानी रोज़मर्रा के जो हम औरतें आजकल जो काम करते हैं, आजकल तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेड से कराते हैं औरतें, है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक हम सेहतमंद हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तब तक हमें खुद के काम है ना अपने हाथों से करने चाहिए। और इसी में हिकमत रखी है, इसी में हमारी सेहत रखी होती है। देखिए, इस तरीके से इस तरीके से रखा जाता है। खाना पकाती, झाड़ू 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 देती, कपड़े धोती और घर के काम दूसरे कामों में लगी रहती। इस तरीके से। और चक्की पीसते-पीसते उनके हाथों में छाले पड़ जाते। देखिए, वो इतने सारे काम करती और जब चक्की पीसती तो उनके हाथों में क्या हो जाता? छाले पड़ जाते थे। तो चक्की पीसते-पीसते क्या हो जाता था? उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। हज़रत फातिमा ज़हरा की। इतने वो काम सारे घर के काम अंजाम देती थी। आगे देखते हैं। मश्क से पानी भर कर लाती, गल्ला साफ करती, आटा पीसती, खाना पकाती, झाड़ू देती, कपड़े धोती और घर के दूसरे कामों में लगे रहती। चक्की पीसते-पीसते उनके हाथों में छाले पड़ जाती। है ना? पहले तो क्या, अभी तो बड़ी-बड़ी मशीनें होती है ना? गिरनियाँ होती है जिसमें हम आटा पीसते हैं, चक्कियाँ होती है। मगर पहले ज़माने में जो आटा होता था, जौ का, जवार का, ये सब औरतें क्या करती थी? हाथों से पीसती थी। घर में घर में झाड़ू देते देते कपड़े गर्द से अट जाते। अट जाना यानी देखिए धब्बे धब्बे लगना, जिस पर धब्बे लग जाते हैं।
गर्द से धब्बे है ना, धूल के जो धब्बे होते हैं ना, उस तरीके से। और चूल्हे के पास बैठते-बैठते कपड़े धोते और मैले धोए धुएँ से मैले हो जाते, सॉरी, धुएँ से बैठे-बैठे कपड़े धुएँ से मैले हो जाते, उन पर सिया धब्बे पड़ जाते। देखो, खाना बनाने के लिए पहले ज़माने में जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था, तो खाना बनाते-बनाते धुएँ की वज़ह से हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा के क्या हो जाते, कपड़े पर सिया धब्बे काले है ना, धूल के जो धुआँ होता है उसके काले धब्बे पड़ जाते। लेकिन लेकिन उन्होंने कभी इसकी शिकायत ना की, है ना? तो क्या कहते हैं उसे, यही नसीहतें, यही रूल्स हमें अपनी ज़िंदगी में भी लाने हैं कि जब भी हमारी भी बेटियाँ बड़ी हो जाएँगी, वो भी शादी करके चली जाएँगी, है ना? तो उन्हें भी हमें ये देनी है, तालीम देनी है कि किस तरीके से घर के कामों में सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। घर के काम देखो, घर के काम ये ज़िम्मेदारी नहीं होती, ये खुशी से करना होता है। और जो नियत देखिए, अगर हम कोई काम ये नियत से करते हैं कि ये हमारे तरफ से हमारे घरवालों के लिए सदका, है ना? बोलते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो ये सदका, ये मेरे बच्चों के लिए, ऐसे सोच कर अगर नियत अच्छी-अच्छी नियतें करके हमारे घर के डेली के काम भी अगर हम करते हैं ना, उस पर हमें बहुत बड़ा अजर मिलता है। तो इसीलिए अपने हम इंशाल्लाह हम भी हमारी बेटियों को क्या करेंगे, इसी तरीके से तालीम देंगे कि घर के कामों को वो छोटा नहीं समझेंगे, है ना? उस पर भी अल्लाह ताला ने बड़े-बड़े अजर रखे हैं। इसीलिए तो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा क्या करते थे, घर के सारे काम अपने हाथों से करते थे। लेकिन उन्होंने इस पर कभी शिकायत नहीं की, देखिए इतने काम करते थे वो, है ना? ज़रा सोच कर देखिए आज, है ना? अगर कुछ लड़की करती है काम, हाँ, बड़े घर की लड़की हो, कुछ काम करती है, तो वो कितनी शिकायतें करती है। मुझे मायके में ये करना होता है, मैं ये करती हूँ, हाथ से कपड़े धोती हूँ। और यहाँ देखिए हुज़ूर, है ना? जो 2 आलम के सरदार है, नबियों के सरदार है, उनकी बेटी, है ना? उनकी साहबज़ादी, उनका कलेजे का टुकड़ा, है ना? इतना कितना मोहब्बत करते थे वो अपनी बेटी से, और वो बेटी इतने सारे काम, है ना? अपने शौहर के घर पे इतने सारे काम अपने हाथों से करती है, और फिर भी शिकायत का एक लफ्ज़ उनके ज़ुबान पर नहीं है। है ना? सोचने का मुकाम है। ऐसी तालीम हमें भी इंशाल्लाह, हम भी इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि अपनी बेटियों को इस तरह की तालीम देंगे, इंशाल्लाह। देखिए फिर आगे देखते हैं बीबी फ़ातिमा। देखिए अगला पैसेज। बीबी फ़ातिमा को बचपन ही से सादगी पसंद थी, है ना? अब देखिए, है ना, बीबी फ़ातिमा को क्या बचपन ही से सादगी पसंद है ना? देखिए हमारे 5 उँगलियाँ तो बराबर नहीं होते हैं ना, हमारे भी बच्चों में देखो कुछ ऐसे होते हैं, जो क्लीन रहने के आदी होते हैं, किसी को टिप-टॉप रहना अच्छा लगता है, मगर ये जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे, ये बचपन ही से सादगी पसंद थी, है ना? इन्हें बनाव-सिंगार ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने सारी उम्र सादगी में बसर की। गरीबों जैसा खाना खाती, गरीबों जैसे कपड़े पहनती। देखो इस तरीके से ये जो सादा खाना, सादा कपड़ा पहनना, ये बुरी बात नहीं है। उल्टा देखिए, अगर हम सादा खाना खाते हैं, अब आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जिस दिन देखिए हम अगर पेट भर खाना खाते हैं, उस वक़्त हमें इबादत में कितनी सुस्ती होती है ना? तो इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कहा था कि पेट के 3 हिस्से बनाना है हमें, एक हवा के लिए, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए। तो क्या होगा हमें, ना इबादत में सुस्ती होगी, अल्लाह की याद रहेगी, हम मौत को याद करेंगे, इस तरीके से। तो इसीलिए ज़्यादा लज़ीज़ खाने के भी अपने बच्चों को आदी नहीं बनाना। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? क्या देखिए, अगर बच्चों को ज़्यादा लज़ीज़ रोज़ाना लज़ीज़ खाने की आदत लग जाए ना, तो वो मानते ही नहीं है, सादे खाने को फिर वो खाते ही नहीं है, है ना? और जब लज़ीज़ खाना होता है तो वो पेट भर कर खाते हैं, फिर इबादत में सुस्ती, है ना? ये फिर बुरी आदतें और लग जाती हैं। तो इसलिए देखिए हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा किस तरीके से उनके बचपन से उन्हें वो क्या करती थी, सादा खाना, सादा रहना, गरीबों की तरह कपड़े। अब वो बात अलग है, गरीब अगर कपड़े भी आप आज अच्छे से पहनते हैं ना, तो उसका भी इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए, है ना? नहीं तो 1-2 मर्तबा पहन देते हैं बच्चे हमारे और बाज़ू हटा देते हैं, ये मुझे नहीं पसंद। तो बच्चे में ये आदत डालनी चाहिए हमें कि नहीं बेटा, ये कपड़े अच्छे हैं, अभी ये खराब नहीं हुए, अभी इसे और पहनना है, जब ये खराब हो जाएँगे तब हम फेंक देंगे, इस तरीके से। तो इस बच्चों में देखिए, जब भी बच्चे कोई चीज़ माँगते हैं ना, फ़ौरन नहीं ला कर देंगे उन्हें। उन्हें एहसास दिलाएँगे कि इसके लिए हमें पैसा खर्च होता है ना? तभी देखिए उनमें भी कुछ है ना, सब्र, तहम्मुल, इस तरीके से हमें उनमें उभारना है उनमें।
इस तरीके से उनकी तालीम करना है कि कोई भी चीज़ है ना लाने के लिए हमें पैसे खर्च करने होते हैं, वो उस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना है। इस तरीके से क्यों तो फिर उनमें देखिए इस तरीके से अगर उनकी तालीम की जाएगी ना तो वो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करेंगे, है ना? फिर आगे देखते हैं देखिए हर हाल में खुश रहती। तो फिर इतना सादा खाना खाकर, सादा रहकर भी वो क्या करती थी, खुश रहती थी। देखो ज़िंदगी में है ना, बच्चों को ये एक तालीम तो हमें ज़रूर देनी है कि देखिए जो हमारे पास है, हमें उसमें इत्मीनान इत्मीनान हासिल करना है। जो हमारे पास नहीं, हाँ, वो किसी और के पास है, हम हमारा बच्चा ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास है, वो मेरे पास भी होना चाहिए। जो हमारे पास है, उसमें शुक्र अदा करने की ना ये बच्चों को आदत लगाना बहुत ज़रूरी है। वरना वो बच्चा आपका कितना भी तालीम हासिल करे, कितना भी बड़ा हो जाए, तो वो ना सुकून नहीं हासिल होगा उसको, सुकून नसीब नहीं होगा। इसलिए बच्चों को ये आदत बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरों से कुछ गर्ज़ नहीं है। हम अपने से नीचे वाले को देखने की आदत रखना है बच्चों को। तभी हमारे बच्चों में ना सुकून रहेगा और वो हर हालत में मतलब फिर कोई भी कंडीशन हो या कोई भी हाल आए, कोई भी वक़्त आए उस पर अच्छा-बुरा जो भी हो उसको सुकून रहेगा उसकी, है ना? उसको इत्मीनान रहेगा। तो कभी भी बच्चे को ये तालीम ज़रूर देनी है कि हम अपने से ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, हमसे नीचे वाले को देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र हमारे पास ये चीज़ है, हमारे से नीचे वाले के पास तो वो भी नहीं है ना? तो इस तरीके से फिर हमारे बच्चों में ये जो क्वालिटी है ना, आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती जाएगी। तो वो उसी तरीके से देखिए हर हाल में खुश रहती, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। हज़रत फातिमा हज़रत फ़ातिमा बड़ी नेक और बड़ी इबादत गुज़ार बीबी थी। रात-दिन अल्लाह की इबादत करती। कुरान मजीद की तिलावत का इतना शौक था कि चक्की पीसते, आटा गूँथते और खाना पकाते वक़्त भी कुरान मजीद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह! देखिए एक किस्सा मैंने ऐसे ही सुना था कि हज़रत फ़ातिमा हाँ, शायद हज़रत फ़ातिमा का ही था। तो एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के करीब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। तो गुज़र हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मतलब फ़रिश्ते हैं आस-पास मतलब उनके घर को घेर लिया है फ़रिश्तों ने, ऐसे। और फिर दूसरे दिन जब गुज़र होता है तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा फ़रिश्तों ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर को घेर रखा है, अपने परों परों से ढाँप लिया है, ऐसे कुछ। तो फिर जब फिर पहले दिन तो हुज़ूर नहीं गए थे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पे। फिर नेक्स्ट टाइम जब इतने सारे फ़रिश्ते देखे, तो फिर जाकर देखा कि क्या बात है? क्यों इतने सारे फ़रिश्ते मेरी बेटी के घर के करीब है ना? ऐसे देखने के लिए वो चले गए। तो देखा कि वो कुछ काम कर रही थी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा और वो काम करते-करते अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी मैं कल भी तुम्हारे घर के पास आया था, तो कल भी आपके घर के पास रहमत के फरिश्ते थे मगर इतने नहीं थे जितने आज हैं। तो फिर कल आप क्या कर रही थी? तो वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने कहा कि मैं एक मुसल्ला लेकर उस पर अल्लाह का ज़िक्र करते हुए बैठी थी। और आज जब हुज़ूर आए तो देखा कि वो काम करते-करते अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। तो देखा अल्लाह ने इतना अजर रखा है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक मुसल्ला लें, उस पर बैठे और फिर ही अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर उससे ज़्यादा आपको कब फ़ायदा मिल रहा है? उससे ज़्यादा रहमत के फरिश्ते कब आ रहे हैं? जब कोई आप काम करते-करते अल्लाह का ज़िक्र कर रही है ना, खाना बनाते-बनाते, कपड़े धोते-धोते या आटा गूँथते-गूँथते, है ना? ये बच्चों को नहलाते वक़्त, ऐसे जो भी है हमारा काम डेली रूटीन, वो करते-करते अगर हम काम करेंगे ना, तो अल्लाह हमें उससे ज़्यादा अजर देता है, जितना कि एक मुसल्ले पे बैठ के हम इबादत करते हैं। देखिए औरतों के लिए कितनी ख़ास बात है ना? कि काम करते-करते हम इबादत करने का हमें ज़्यादा अजर मिलता है। तो ये किस्सा सुना था मैंने। तो मैं वो यही कहना चाहूँगी कि हम सभी बहनें ने भी यही करना है कि ब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ना कहे कि मुझे इबादत के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मुझे है ना इतना सारा काम होता है। कोई बात नहीं, आप काम करते-करते ज़रूरी नहीं काउंट करना, ऐसे काउंट करूँगी मैं मेरा कितना हो गया, है ना? अल्लाह देते वक़्त हमें गिन-गिन कर के तो नहीं देते, है ना? नियामतें जब अल्लाह देते हैं, गिन-गिन के नहीं देते। तो फिर हम उस अल्लाह के ज़िक्र को क्यों गिनेंगे, है ना? तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें अनगिनत मतलब जितना हमें टाइम मिलता है ना, बच्चों से वगैरह फ्री होने के बाद जितना भी हम काम करते हैं देखिए जब हम काम करते हैं ना, तो बच्चे हमारे पास नहीं आते ज़्यादा, है ना? तो उस वक़्त हमारा मुँह बंद रहता है मतलब हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, तो उस वक़्त ज़िक्र करना बहुत मतलब अच्छा वक़्त लगता है मुझे तो। तो इंशाल्लाह हम सभी बहनें इस जो काम के टाइम में है ना अलग-अलग ज़िक्र का रूटीन बनाएँगे इंशाल्लाह। तो उसी तरीके से हज़रत फ़ातिमा देखिए क्या करती थी कि जब काम करते वक़्त, आटा पीसते वक़्त, खाना बनाते वक़्त वो ये क्या करते थे कुरान कुरान मजीद पढ़ते रहते थे।
इन्हीं तमाम खूबियों की वजह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का मर्तबा औरतों में बहुत ऊँचा है और उनकी ज़िंदगी तमाम दुनिया की औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है बेशक, है ना? तो देखिए हमें भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तरह काम करते-करते इबादत करना है, ना कि ये शिकायत करनी है कि मुझे वक़्त नहीं मिलता, मैं तो मुश्किल से नमाज़ ही पढ़ लेती हूँ, कोई अज़कार करने का टाइम नहीं मिलता, है ना? अरे चलते-फिरते, उठते-बैठते, झाड़ू लगाते हुए है ना? तो सुबहान अल्लाह देखिए झाड़ू लगाते-लगाते अगर हम सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं ना तो काबा शरीफ में झाड़ू लगाने का भी सवाब मिलता है। ऐसे बहुत सारे अज्र है जिससे अभी तक बहुत सारी औरतें क्या है मैं उन्हें मालूम नहीं है कितना-कितना अर्ज ये काम करते वक़्त अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो। तो यही हमारे ऐसे रोल मॉडल बनाए हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा को उनकी तरह काम करते-करते अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो मुसल्ले पर बैठकर जितना हमें सवाब नहीं मिलेगा उससे कहीं-कहीं ज़्यादा हमें इस तरीके से ज़िक्र करने का सवाब मिलेगा। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा के 2 बेटे थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 2 बेटियाँ थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उम्मे कुलसूम। यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा की औलाद का ज़िक्र किया गया है कि हसन, हुसैन और हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ये इनकी औलादें थी 4 हज़रत अ, हसन और हज़रत हुसैन भी बहुत मशहूर है। ये तो आपको सभी को पता है ना हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। देखो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए और एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज़ बोलती हूँ कि पहले कैसे बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, एक पेरेंट्स को बताया गया है, उसके तरीके से आप देखिए आप खुद है ना? माँ है, तो माँ-बाप के लिए औलाद कैसी होती है, छोटी औलाद में से ज़्यादा लगाव होता है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि औलाद ने भी किस तरीके से रहना है, माँ-बाप का फर्माबरदार रहना है, एज़ अ बेटी एंड एज़ अ डॉटर जो है, वो सोचे कि हम एज़ अ डॉटर किस तरीके से अपने माँ-बाप को ट्रीट करें, है ना? उनके साथ किस तरीके से हुस्न सलूक करें। ये बताया गया है। फिर शौहर और बीवी के रिश्ते में भी हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से एक-दूसरे की इज़्ज़त ताज़ीम करना है ना? एक-दूसरे के लिए मतलब एक-दूसरे को अहमियत देनी है। इस तरीके से यहाँ पर हर रिश्ते पर नज़र डाली गई है। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सबक था, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, हमने समझ लिया है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं और देखिए इसमें जो भी हार्ड वर्ड वगैरह जो आते हैं तो इंशाल्लाह हम क्लास के एंड में देख लेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।